Okay, let us start today's session with a very quick revision of what we have seen so far. I will not go into inertial and non-inertial frame of reference. अब आपको पता है, पहले तो आपको ये पता है कि frame of reference क्या होता है. What is frame of reference? Coordinate system that we use to describe the motion. उसमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखे थे. इनर्शियल जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड था, और नॉन इनर्शियल जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं था. और inertial frame of reference is a frame of reference at rest or moving with constant velocity, and non-inertial frame of reference is a frame of reference which is accelerated. Right? तो ये difference है. Inertial frame of reference was a frame of reference which is not moving or moving with constant velocity, and non-inertial frame of reference is a frame of reference which is accelerated, which is moving with variable velocity, not constant velocity. Okay, then we started with fundamental forces in nature. So in this nature जितने भी forces है, they can be classified into four categories: gravitational, electromagnetic, strong nuclear force and weak nuclear force. लास्ट सेशन में हमने इन डिटेल देखा था व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इफ यू रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज बिटवीन टू मासेस. जहां जहां पे मास होगा वहां वहां पे फोर्स होगा. सो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर with a force which is proportional to. तो याद रखना, these are few words which are important. Every particle of matter मतलब जहां जहां पे मास होगा वहां वहां पे अट्रैक्शन होगा. Example, there are many example: Earth, Sun, Earth, Moon, Jupiter, Sun, Mars, Sun. There are so many examples. Even for example, अगर आप एक टॉल बिल्डिंग पे जाके एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो तो आपको दिखता है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी. अदर वे अराउंड इज ट्रू, मतलब अर्थ इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. बट डोमिनेट कौन करेगा? अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास कितना है? 10 पावर 24 किलोग्राम, और जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हो 1 या 2 किलोग्राम होगा मैक्सिमम. सो यू डोंट ऑब्जर्व, यू कैनॉट मेजर कि हाँ अर्थ भी मूव हो रहा है. Doesn't happen like that, right? But you see the object is going towards earth. So every particle of matter attracts every other particle. इस statement का बहुत deep meaning है. Anything in this universe will attract each other. So you and some other object is always attracting each other. For example, अगर मैं इस स्पेस को ग्रेविटी फ्री बना देता हूँ, अर्थ की ग्रेविटी हटा देता हूँ यहाँ से, इन शॉर्ट, तो you and any other object here will start moving towards each other, right? With a force which is proportional to product of masses. Directly proportional to product of masses matlab force is proportional to m1 into m2 and inversely proportional to square of distance between them. So combining these two, so force is proportional to m1 into m2 and force is proportional to 1 by r square. तो दोनों कंबाइन कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r square. प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाओगे तो यू नीड टू राइट डाउन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो ये आ जाएगा g m1 m2 by r square, where g is called as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मैंने आपको बताया था देयर आर ओनली फ्यू कांस्टेंट जो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि g, जैसे कि chemistry में very soon you will learn about. Have you went through ideal gas equation? Do you know there is R there? Gas constant, that is also universal constant. बाकी acceleration due to gravity is not universal constant, it is local constant. For example, अर्थ के इक्वेटर पे, पहले तो अर्थ के सरफेस पे, वो भी इक्वेटर पे अगर आप मेजर करोगे तो 9.75 वैल्यू मिलती है, नॉट 9.8, 9.75. जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ते जाती है और पोल पे आती है 9.8, राइट? फॉर एग्जांपल आवर सिटी इज बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, है ना? इक्वेटर मतलब वो श्रीलंका के नीचे से लाइन पास होता है, वो गोस थ्रू इंडोनेशिया. पोल मतलब यूरोप. वी आर समवेयर इन बिटवीन. तो हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? 9.77, 9.78. लेकिन हमारे सिटी में मेजर करें कहीं पे भी तो इट विल बी ऑलवेज 9.78.
किसकी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लोकल कांस्टेंट है बिकॉज इट इज लोकली कांस्टेंट एंड दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, देन वी हैव सीन सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें सबसे पहला था कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा. टेलिंग यू, इसमें से इस क्लासरूम में से मैंने पूरा अर्थ का ग्रेविटी माइनस कर दिया एंड आई लीव ओनली यू एंड योर एनिमी हियर, फिर भी आप दोनों ना चाहते हुए भी यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. जहां जहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है उसको बोलते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ. अगला प्रॉपर्टी हमने देखा था कि लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसका रेंज ऑलमोस्ट अप टू इंफिनिटी है, राइट. इट इज लॉन्ग रेंज, मतलब रेंज इज सो हाई कि ये इंफिनिटी तक भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा. सो फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस. देन इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. तो जो चारों फोर्स हमने मेंशन किए उसमें से सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड एक प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं की थी, वी विल डिस्कस नाउ. इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि दो मासेस के बीच में क्या है? एयर है, वाटर है, केरोसिन है, पेट्रोल है, वैक्यूम है, प्लास्टिक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. सो द फोर्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. फॉर एग्जांपल अर्थ एंड सन का ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. वैसे भी वैक्यूम है वहां पे. इफ यू ट्राई टू पुट एयर, विच यू कैन नॉट पुट एयर, बट हाइपोथेटिकली आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लिए, आपने अर्थ और सन के बीच में वाटर को भर दिया, तो फोर्स विल स्टिल बी द सेम. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मासेस में जो फोर्स है विच इज दिस वन, ये इन दोनों मासेस के बीच में क्या है, विच मटेरियल इज देयर, इट इज इररिलेवेंट, डजंट मैटर. कुछ है कुछ नहीं है, क्या है, डजंट मैटर. द फोर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. एंड यू कैन सी कहीं पे भी दिख रहा है कि आपको कि किसी पे डिपेंड करता नहीं करता है. जी तो कांस्टेंट है, मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. हमने एग्जांपल्स देखे थे. वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मार्स अराउंड सन, मोशन ऑफ जुपिटर अराउंड सन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ gravitational force. Now let us discuss second type of force. So today we will go ahead with second type of force, which is called as electromagnetic force. And as the name says, इसमें दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड से आने वाला. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसमें इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, नाम में ही दो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट. हैव यू सीन समथिंग लाइक when two charges q1 and q2 are at rest, what is the force between them? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. गुड. तो हमने ऑलरेडी देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हेन टू चार्जेस q1 and q2 आर एट रेस्ट. यहाँ पे q1 है, यहाँ पे q2 है, दोनों में डिस्टेंस है r. ये जब रेस्ट पे है तो इन दोनों का फोर्स हमको पता है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर. गुड, राइट. देन बट व्हाट हैपेंस इज, तो थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. जिनको नहीं पता डोंट वरी, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आपको धीरे धीरे समझेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. होता क्या है? होता ये है, अगर आपके पास एक चार्ज है, लेट अस से वी हैव चार्ज q1. q1 चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है. इस स्पेस में जब दूसरा चार्ज आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो ये जो सराउंडिंग स्पेस है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. So any charge has a field, has a region in its surrounding where other charge will experience a force. ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है
अट्रैक्टिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट? नाउ इसके आगे, व्हाट हैपेंस इफ आई हैव चार्जेस इन मोशन? अब आपको पता है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू ऑलरेडी नो दिस. नाउ लेट अस से आई हैव अ चार्ज व्हिच इज मूविंग. We have a charge which is moving, right? Charges in motion. तो जैसे charges at rest produce electric field, वैसे ही charges in motion produces magnetic field. तो जब जब चार्ज मोशन में होगा उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. Charges at rest produce electric field. Charges in motion produce magnetic field. जैसे एक रेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा चार्ज आ गया इट वाज एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे ही एक मूविंग चार्ज के फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ गया, सो इफ यू हैव अनदर चार्ज मूविंग चार्ज, इफ यू हैव अनदर मूविंग चार्ज इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, दोनों मूविंग है, this second charge will experience magnetic force. Charge at rest produces electric field. Charge in motion produces magnetic field. Another charge when brought in the electric field of first charge experiences electric force. Another moving charge brought in the magnetic field of first charge will experience magnetic force. इन दोनों को combine करके जो force आता है उसको बोलते हो electromagnetic force. Right? Good. So इसको define कैसे करेंगे? जो पता है वो हमको लिखना है. That's it. So what do we know? We know that charges at rest produce electrostatic field. When another charge is brought in this field, it experiences electric force. Similarly, a charge in motion produces, क्या प्रोड्यूस करेगा? Magnetic field. Produces magnetic field in its surrounding. When another moving charge is brought in this field, it will experience magnetic force. Okay. तो इसका मतलब चार्जेस इन मोशन जब हो तो उस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स एक्ट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देयरफॉर चार्जेस इन मोशन experience both electric and magnetic forces. Such force is known as electromagnetic force. All right. तो जैसे ग्रेविटेशन के एग्जांपल देखे थे, वैसे इसके भी एग्जांपल्स. तो लेट अस लुक एट फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स. एंड बाय द वे, ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर. क्या करना? यू कैन टेक टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स. हमारे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. जब आपने इन दोनों में लाइक करंट्स, लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. यहाँ पे लाइक करंट्स का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में करंट. देख रहे हो दोनों में करंट जा रहा है बॉटम टू टॉप. जब आप
दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट पास करोगे तो इट बिकम समथिंग लाइक दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो याद रखना दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, तो ऐसा बन जाएगा वो। तो वायर्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर। वहां पे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपने एक वायर में से करंट बॉटम टू टॉप सर्कुलेट किया, दूसरे में टॉप टू बॉटम किया, तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो उस केस में ऐसा होगा, इन दैट केस यू विल सी समथिंग लाइक दिस। दोनों वायर्स दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों जो वायर्स थे दे आर नॉट क्लोज बट दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर नाउ। एक में ऊपर से नीचे, दूसरे में नीचे से ऊपर, राइट? So this is real life example of electromagnetic force. So when a current passes through two long parallel straight wires, they experience electromagnetic force. इसमें नंबर वन, as you know, if both the currents are in same direction, if both the currents are in same direction, इसको क्या नाम दिया है आपने? like currents. Same direction, like currents, the wires attract each other. And number two, if both the currents are in opposite direction, अगर दोनों currents opposite direction में हो, then the wires repel each other. So if both the currents are in opposite direction, उसको आप बोलते हो unlike currents. तो अगर unlike currents है, right, the wires will repel each other. They will repel each other. So this is what happens. तो ठीक है, one example is sufficient enough. ठीक है, एक ही एग्जांपल बता दो चलेगा। तो well, by the way, important is to understand the idea, concept. Charges at rest, electrostatic force, electric force. Moving charges produce magnetic field, and अगर उस magnetic field में दूसरा चार्ज आ गया लेकिन मूविंग होना चाहिए, अगर वो चार्ज भी मूविंग है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो चार्जेस इन मोशन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक एग्जांपल है, यू टेक टू स्ट्रेट वायर्स पैरेलल टू ईच अदर, सर्कुलेट करंट, दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग, लाइक करंट्स अट्रैक्ट। अगर एक में ऊपर की तरफ, दूसरे में नीचे की तरफ, दे रिपेल ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो जैसे आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ऑन द सिमिलर लाइन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा एक वर्ड यहाँ का वहां या एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा। तो जैसे आपने वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, यहाँ पे भी वैसे के वैसे लाइंस पे आप लिख सकते हो। क्या था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, but electromagnetic force or repulsive. So it is either attractive or repulsive. It is either attractive or repulsive. तो वो डिपेंड करेगा, चार्जेस दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा करंट्स पे भी, करंट का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है उस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर टू, it is either attractive or repulsive force. यहाँ पे आपने नंबर टू प्रॉपर्टी में क्या लिखा था? It obeys inverse square law. It also obeys inverse square law. आपने ही बताया, you just told me what is the force between two charges, Q1 Q2 by
आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है और वो आर डिनोमिनेटर में है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जहां जहां पे 1/r स्क्वायर दिखे वहां वहां पे इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, it is a long range force and valid up to infinity. Same here, it is a long range force and valid up to infinity. It is a long range force and valid up to infinity. तो इसका भी कोई इशू नहीं है रेंज का, अप टू इंफिनिटी। चौथा पॉइंट आपने क्या लिखा था, डू यू रिमेंबर? हाँ, weakest force in nature, gravitational was weakest force in nature। अगर वो weakest है तो ये उससे strong होगा, so it is stronger than gravitational force, it is stronger than gravitational force, than gravitational force। Next, it does not depend on intervening medium। लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, मैंने तभी बता दिया था कि I don't like when students write force as 1/4 pi epsilon 0 always. That is not correct because it is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square। epsilon, not epsilon 0। या तो आप इसको ऐसा लिखो epsilon 0 k, where k is dielectric constant। अगर एयर या वैक्यूम हुआ तो k की वैल्यू होती है 1, तो आप लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, now it is okay। So this is force in vacuum or air vacuum। Then I told you, I gave you an example कि अगर हमने दोनों सेम चार्जेस को, वही दो चार्ज उसी डिस्टेंस पे, सिर्फ अगर हमने उसको रख दिया वाटर के अंदर, तो अगर आपको याद होगा वाटर के अंदर या फिर एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसमें अगर रख दिया तो ये आ गया फोर्स इन मीडियम। बट वेट अ मिनट, दिस इज नथिंग बट फोर्स इन वैक्यूम, सिर्फ एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में क्या है, k है, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन k, मतलब कम हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर वाज 80, फोर्स इन वैक्यूम बाय 80। अगर 800 न्यूटन का फोर्स है वैक्यूम में, तो वही दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पे अगर वाटर में लेके गए तो हो जाएगा 800 बाय 80, मतलब 10 न्यूटन। कहाँ 800 न्यूटन और कहाँ पे 10 न्यूटन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। दो चार्जेस के बीच में, दो वायर्स के बीच में क्या रखा है आपने, उस पर डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि ओके व्हाट बिग डील, 12th आता है समझेगा, हम लोग एक एक चीज एक्स्ट्रा डालते जाएंगे। करंट का डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और बाद में हम लोगों को करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और बाद में इवन हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने एल्यूमिनियम की जगह पे कोई और मटेरियल यूज किया तो हाउ इट अफेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यू नीड टू नो ऑल दिस। ओके, ध्यान यहाँ पे चाहिए मुझे। आई डोंट वांट यू टू लुक हियर एंड देयर, हियर, राइट हियर। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इन द लिस्ट, नेक्स्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग। अभी नाम में ही स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस, you just said कि Coulomb's force is repulsive अगर दोनों चार्ज हो पॉजिटिव, करेक्ट? if both charges are positive then Coulomb force is repulsive। but wait a minute, and I hope कि आपका बेसिक केमिस्ट्री तो हुआ ही होगा, और बेसिक केमिस्ट्री में आपको पता ही होगा कि एलिमेंट्स मतलब एटम्स, एटम्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर protons and neutrons। You have answered correctly, but then I want to ask you one step ahead। I want to know, as you just said कि nucleus के अंदर protons
मान लो ये 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, एंड न्यूट्रॉन्स। चलो न्यूट्रॉन का तो हम बाद में बात कर लेंगे, बट प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव थे, पर आपने बोला कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग रिपेल करना चाहिए, फिर ये साथ में कैसे? नहीं, मास की बात ही नहीं है यहाँ पे, चार्जेस की बात है। Wait. There are no electrons inside nucleus. There are no electrons inside a nucleus. We are talking about the nuclear force. We don't care. We are talking about nucleus. Nuclear force. It has only to do with the nucleus of atom, not electrons. Nothing outside nucleus, inside nucleus. और ऊपर से आपको पता होना चाहिए what is the diameter of this nucleus, of any nucleus in general. No. I want a number here. 10 raised to minus 15 मीटर, तो इतना छोटा है, 10 पावर माइनस 15 मीटर। You said, आप दो अपोजिट स्टेटमेंट बोल रहे हो, यू आर टेलिंग मी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। कूलम्ब्स लॉ, यू से पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, और आप बोल रहे हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन साथ में बैठे, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? कभी सोचा ये? अरे ऐसा कैसा? हम तो बोल रहे थे कूलम्ब्स लॉ में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, गो अवे, यहाँ पे साथ में। हाउ कम? सो व्हाट हैपेंस इज, यस, बोथ सिचुएशंस आर राइट। जब आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, डेफिनेटली दे आर रिपेलिंग ईच अदर, नो डाउट अबाउट इट। बट वेट अ मिनट, अगर मैं इसको जबरदस्ती का पास में ला रहा हूँ, आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के बाद, मतलब एक्चुअली एक डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, and they attract each other because of strong nuclear force. तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन तो है ही है, बट वो एक डिस्टेंस के बाद है, 10 पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो रिपल्शन है, उससे कम डिस्टेंस पे अट्रैक्शन है, एंड दिस अट्रैक्शन explains the stability of nucleus. Think, imagine, it is very interesting. It is really interesting. You, me, this pen, this board, everything you see, it is made up of all the elements of periodic table, more or less, है ना? हमारे बॉडी में water is H2 and O, oxygen and hydrogen, they are made up of again electrons in the nucleus, and in the nucleus, not electrons in the orbit, और nucleus के अंदर अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो कभी प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में बैठते ही नहीं, आते ही नहीं। अगर वो ही नहीं आते तो न्यूक्लियस बनता ही नहीं, न्यूक्लियस बनता नहीं तो एटम बनता नहीं, एटम बनता नहीं तो ना तुम ना मैं ना कुछ, नथिंग, नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, नथिंग एट ऑल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द रीजन फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। स्टेबल न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऑर्बिट में रहेंगे, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो नो फॉर्मेशन ऑफ एटम। सो नंबर 1, it is required to explain stability of nucleus. So this force acts on particles inside nucleus, particles inside nucleus. कौन कौन से particles होते हैं? protons and neutrons. It is required for stability of nucleus. It is required for stability of nucleus. So strong nuclear force explains stability of nucleus. Q, because you already know proton will repel each other. We know that protons being positively charged will repel each other, but when they are brought very near to each other,
brought very near. कितना near? तो less than 10 power minus 15 meter. They start attracting each other. They start attracting each other due to strong nuclear force. Strong nuclear force. Right? अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1, कंपेयर. Electromagnetic was either attractive or repulsive. Strong nuclear force is only attractive. So it is only attractive. It is only attractive force. Attractive in nature. Number 2, it obeys inverse square law. यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला बताया आपको जहां पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², नहीं? सो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. It does not obey inverse square law. Inverse square law. ये था लॉन्ग रेंज. इसका वैलिडिटी मतलब इसका रेंज था इंफिनिटी, और ये है शॉर्ट रेंज, और इसका रेंज है ओनली अप टू 10 पावर माइनस 15 मीटर. उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल स्टार्ट डोमिनेटिंग. सो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स with range up to force with range of around 10 power minus 15 meter or less. इतना या इससे कम, ज्यादा नहीं हो सकता. ज्यादा हो तो then they start repelling each other. Then ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर था क्योंकि ग्रेविटेशनल वीकेस्ट था. Here, this strong nuclear force is strongest in nature. It is strongest in nature. ये सबसे strong है. How can you basically prove? Easy है, बहुत easy है. 2 प्रोटॉन लो, 2 प्रोटॉन को अलग अलग डिस्टेंस पे रख के, अलग अलग मतलब लेस देन 10 पावर माइनस 15 मीटर पे रख के पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो, उसका एक वैल्यू मिलेगा. कैसे करोगे कैलकुलेट उसका वैल्यू? 1/4 pi epsilon 0 चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अनदर प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस. ये 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज E, इस पे भी E, इन दोनों का डिस्टेंस है 10 पावर माइनस 15. फोर्स इज 1/4 pi epsilon 0. व्हाट इज 1/4 pi epsilon 0? 9 into 10 power minus 9 की plus 9 plus 9 plus 9 1/4 pi epsilon 0 is 9 to 10 power plus 9. ये आ गया आपका 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. q1 q2 e square upon distance का square. What is charge on proton value? E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. वो वैल्यू यहाँ डालोगे, कैलकुलेशन करोगे, एक नंबर मिलेगा. और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैलकुलेशन कर नहीं सकते, यू हैव टू फाइंड इन द लिटरेचर, बुक्स में ढूंढना पड़ेगा. फिर कंपेयर करोगे, आप बोलोगे अरे स्ट्रॉन्ग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये इट इज वेरी स्मॉल नंबर कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड. देन it depends on intervening medium. वो कुछ नहीं बोल सकते हम यहाँ पे. no comments. why? already 10 power minus 15 का diameter है, इतना छोटा है, उसमें क्या तुम और रखने वाले हो अंदर? कुछ नहीं रख सकते. so nothing there, you cannot say anything. but एक additional चीज आप बता सकते हो. do you know, आपको obviously पता है, you already know कि एक न्यूक्लियस में
You know, inside a nucleus there are protons and neutrons. You should know कि ये जो strong nuclear force है वो प्रोटॉन प्रोटॉन में तो होता ही है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी होता है, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होता है. मतलब this strong nuclear force is independent of charge. न्यूट्रॉन पे there is no charge, so it is independent of charge. It और ये जो फोर्स है ये इक्वल होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में जितना उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी. सो दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट. सो strong nuclear force is independent of charge, which means the magnitude of force is the same. The magnitude of force is the same for proton proton, proton neutron and neutron neutron. तो ये charge independent है. It is only attractive. It has nothing to do with gravitation. It acts only when this nucleons. By the way, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. जैसे all of us live in Dhule and they are Dhudekars. They are inside nucleus and they are nucleons. So all this strong nuclear force acts on all the nucleons. मतलब proton will attract another proton, neutron will attract another neutron, and neutron and proton will attract each other, but has nothing to do with charge, has nothing to do with mass. Because gravitational force was mass dependent, electromagnetic was charge dependent. This is neither mass dependent and nor charge dependent. बस है, कहाँ से आया वो मत पूछो. There is this force. Okay, at this stage you should not ask कहाँ से आया. That is higher level physics. So now अब रह गया एक आखिरी फोर्स, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब ऐसा है, ये एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का अपोजिट वाला फोर्स है. देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने आपको क्या बताया? इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना. मैंने बताया इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. How can protons live together inside nucleus? They should repel, but they're not repelling. It is explaining stability. Have you heard of something called as nuclear power reactors, nuclear missiles, nuclear something something, nuclear bomb? Suna hai? You know what material do they use inside that? Radioactive. What is radioactive material? It emits radiation. It emits particles also. Why? Because they are unstable. तो हमारे पास ऐसे भी एटम्स है जिसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए. मतलब ऐसा है यूरेनियम 295. ओके, आई डोंट रिमेम्बर मास नंबर, तो यू शुड चेक 237 235 298. आई डोंट रिमेम्बर, प्लीज चेक दैट थिंग. एनीवेज, व्हाटएवर इट इज, something 200. Okay, good. तो ऐसा है, we have a nucleus which are unstable. अब अनस्टेबल है तो स्टेबल बनना है तो ये स्टेबल बनने के लिए they will either emit radiation which is gamma radiation, or they will emit some particles. अब particles में they can emit 3 different varieties. एक, they can emit अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे. इट कैन इमिट बीटा पार्टिकल में वापस 2 वैरायटीज है. एक है नेगेटिव बीटा, एक है पॉजिटिव बीटा. अब ये जो नेगेटिव बीटा है ये इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली. तो देखो, न्यूक्लियस कैनॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकते, लेकिन वहां से प्रोड्यूस होके इमीडिएटली इजेक्ट हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोड्यूस इनसाइड न्यूक्लियस, yes, but they have to go out immediately.
दे आर नॉट सपोज टू स्टे देयर इनसाइड, रह ही नहीं सकते हो। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, या तो वो रेडिएशन इमिट करके स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, या फिर वो पार्टिकल इमिट करके स्टेबल होगा। पार्टिकल में या अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या फिर बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। बीटा में दो टाइप है, नेगेटिव बीटा एंड पॉजिटिव बीटा। नेगेटिव बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स, राइट, negative charges, and mass is mass of electron. Positive beta is not protons, they are positive electrons, positrons बोलते हैं उसको। मतलब क्या डिफरेंस है, इसमें चार्ज है प्लस ही, लेकिन मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है प्लस ही, लेकिन मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 power minus 27, whereas mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31. करेक्ट। ये जो अनस्टेबल था इसको बोलते हैं पेरेंट। पेरेंट विल इमिट समथिंग, दिस इज बाय प्रोडक्ट बाय द वे, और इमिट करने के बाद जो नया न्यूक्लियस बच गया आफ्टर इमिटिंग, तो जो जो इमिशन होना था वो हो गया, उसके बाद जो बच गया उसको हम बोलते हैं डॉटर। पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अब हो सकता है कि डॉटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होता है। अगर डॉटर अनस्टेबल है तो डॉटर विल बिकम पेरेंट एंड अगेन इमिट, इट विल ट्रिगर अ चेन रिएक्शन। जब तक स्टेबल एलिमेंट नहीं मिलता चलता रहेगा, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ओके, अब हमको इतना डिटेल जाना नहीं क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ 12th में आप अच्छे से इन डिटेल सीखोगे विद फॉर्मूलाज, विद मैथमेटिक्स। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये जो इमिशन हो रहा है पार्टिकल का या फिर रेडिएशन का, अपने आप कुछ नहीं होता, एक फोर्स चाहिए होता है कुछ करवाने के लिए। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से इमिशन हो रहा है, वो इमिशन को ट्रिगर करने के लिए जो फोर्स चाहिए, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। And this weak nuclear force acts between elementary particles. They don't act between proton neutron. ये जो फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, किसमें एक्ट हो रहा था? वो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बट वीक न्यूक्लियर फोर्स acts between elementary, what is elementary particle? Have you went to elementary school? Yes, मतलब बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल लेवल। अभी तक हमको क्या पता था? अभी तक मतलब अप टू 8th 9th यू मस्ट बी नोइंग कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल जिससे बनता है उसको आप बोलते हो एटम। एटम का मतलब ही है इनडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटली ऐसा दिखा कि वहां से नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। फिर ये समझा, अरे नहीं, एटम्स में तो नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग होता है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव भी है। फिर 2-3 अलग अलग मॉडल्स आए, उसमें रुदरफोर्ड का भी आया। रुदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? न्यूक्लियस में, सेंटर में। फिर उसके करेक्शंस को लेके बोहर आया। फिर हमको आज ये पता है कि न्यूक्लियस है एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड। फिर न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने बोल दिया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बट नो, protons and neutrons are made up of quarks. इलेक्ट्रॉन ये अलग फैमिली का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको। will not go at that level here, but you should know electron is not part of family of proton and neutron, वो अलग है। Okay, anyways, what you should know is ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है ये खुद ही एलिमेंट्री नहीं है, they are made up of quarks. quarks और क्वार्क्स में अलग अलग फ्लेवर आते हैं, वो विल नॉट गो इनटू दैट, दैट विल बिकम एमएससी लेवल फिजिक्स। पता होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स ने क्या किया, इसने अनस्टेबल न्यूक्लियाई को मजबूर कर दिया कि यू इमिट रेडिएशन और पार्टिकल एंड बिकम स्टेबल। तो दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स व्हिच हैज ट्रिगर्ड दिस इमिशन बेसिकली एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल ये वर्ड के आगे आपको कुछ भी नहीं बताना है। क्वार्क क्या? नथिंग नथिंग नथिंग। व्हाट इज डॉटर एलिमेंट? नथिंग नथिंग एंड नथिंग। सिर्फ ऐसा बोलना है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल
force is responsible for radioactive decay, is responsible for radioactive decay, in which an unstable nuclei emits radiation or particles and becomes stable It acts between elementary particles. It acts between elementary particles. ये प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 1. दूसरा, ये भी शॉर्ट रेंज होता है. इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स. नंबर 3, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, राइट. इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से तो वीक ही होगा, इसलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से वीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी वीक है, लेकिन ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो वीकेस्ट था. So that is why it is stronger than gravitational force, but weaker than strong nuclear force and electromagnetic force. Right. So that's all you need to know about weak nuclear force. So just a very quick comparison. Gravitation is between two masses. Electromagnetic is between two charges at rest or moving. Strong nuclear force is between nucleons, मतलब proton, neutrons, so on so forth, and weak nuclear force is between elementary particles. यहाँ पे quark तुम बोलो चलेगा, नहीं बोलोगे तो elementary particle. Your book doesn't go up to that level where they say quark, so elementary particles. Gravitational force is only attractive. Electromagnetic is either attractive or repulsive. Strong nuclear is only attractive. This you cannot say attractive or repulsive. This you just say it is responsible for decay. कौन सा? Weak nuclear force. You cannot say attractive है कि repulsive. It is a force responsible for decay of particles. Okay. Then what about range? रेंज की भी तो बात की थी ना हमने. लॉन्ग रेंज. ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज लॉन्ग है, इंफिनिटी है, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज वेरी शॉर्ट, 10⁻⁻15 मीटर तक, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज उससे भी शॉर्ट, राइट. तो इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स. देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट. Electromagnetic is stronger than gravitational force. Strong nuclear force is stronger compared to all, strongest. Weak nuclear force is stronger than gravity but weaker than strong nuclear force and electromagnetic force. Then lastly, gravitational force does not depend on intervening medium. Electromagnetic force depends on intervening medium. In case of strong or weak nuclear force, there is no question of intervening medium. बात ही नहीं कर सकते हो. कहाँ रखोगे? 10⁻⁻15 मीटर ऑलरेडी टोटली पैक्ड विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो क्या ही रख सकते हो उसके बीच? नथिंग. और बाय द वे, इफ यू ट्राई टू मूव देम अपार्ट एंड कीप समथिंग इन बिटवीन, मूव देम अपार्ट मतलब 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो गया, तो कौन डोमिनेट करेगा? Electromagnetic force. So that's it for today, and that's it with all the fundamental forces of nature.